सर्चिंग फॉर फाउंडेशंस दैट विल वर्क इन समर्स। इस वीडियो में ना मैं बात करने वाली हूँ उन अफोर्डेबल और लग्जरी स्किन टिंट्स और फाउंडेशंस की जो आप इस इंडियन समर में यूज कर सकते हो। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्किन टिंट्स फर्स्ट। स्किन टिंट्स का बेसिक रूल हम याद रखेंगे दैट दे आर ऑलवेज शेयर टू मीडियम कवरेज and you still need little bit of powdering on top of them, at least on your T-zone. So let's start with the Nykaa Super Light Serum Infused Skin Tint. This one comes with a bottle. इसकी जो finish है ना वो naturally matte finish आती है. I like this skin tint for your everyday use, for your office, college wear and for light makeups as well. This one looks amazing on the skin, performs amazing. ऑक्सीडाइजेस टू 1 to 1.5 टोन। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है ना तो हो सकता है कि स्किन टिंट या फाउंडेशन थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीडाइज हो इन कंपैरिजन टू समबडी जिसके फेस पे इतना ज्यादा ऑयल नहीं आता। सो that's why I say a range of 1 to 1.5 tones. It will oxidize. Otherwise, I feel this is beautiful for everyday use. And plus, again, I like the pump factor in this one. Now, the next in line is L'Oreal Infallible 24-hour Tinted Serum. This one comes with a dropper bottle, okay? And you can just take it over here on the back of your hand and then apply it. Don't you dare to apply it right on your cheek because it can definitely gather more bacteria from your face. In summers, you have a lot more bacteria than you have in winters. So try to take it on the back of your hand and then you can use it from there. You can use your fingers, you can use your beauty blender, you can use your brush. This one comes in 7 shades, lesser than the Nykaa one. And this has a radiant dewy finish. तो अगर आप बहुत ज्यादा oily हो जाते हो then you can opt for the Nykaa one. Otherwise, this one is beautiful. People who are like above 30, above 35 or who have dry skin, they can definitely opt for this one because it doesn't feel so matte. It doesn't look too matte. Sometimes जब आपके foundation या skin tint बहुत ज़्यादा matte लगते हैं then they can make your skin look little lifeless or dull. So make sure a little bit dewiness is important. Now in the matte skin tint, you can use a moisturizer and make it look more healthy. And if you have dry skin, you can opt for this one. These are the two options which are affordable. Now if you want to opt for options जो कि थोड़े से luxury version में आते हो, then I have my Makeup Forever skin tint. I love this bottle. It has a skin like finish. 10 shades में आता है and this is like a tube bottle. So you just have to squeeze it and take it on the back of your hand and it's good to go. There is no wastage and you can just squeeze out as much as you want and it looks so much natural on your face. I completely love this one for your office uses and for your no makeup looks. In fact, I feel that this is so thin that you don't need a lot of powdering on it, but we are still going to powder our T-zone area and our under eye area if we want to wear our skin tints more than 2 hours. Okay, so this is Makeup Forever one. Last one in this category is Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. If you have oily skin, if you have a skin that has open pores, mature skin has open pores, oily skin has open pores, acne, and if you want something that controls the shine on your face as well. Beautiful packaging, easy to carry, squeezy bottle, and then this gives you soft blurred finish. Comes in many shades, so shade की आपको कभी problem नहीं होगी. I completely love this skin tint for oily skin, for blurring look and for the ease of carrying this one. This is definitely luxury, definitely expensive, but it performs. Now, if I'm moisturizing more, I'll pick this one. But if I want more blurred look, I'll pick this one. Later in this video, मैं आपको कुछ favorites भी बताऊंगी. Out of all of these, which one should you pick? Now, let's move to the cushion foundations. When we talk about the cushion foundations, I have 2 options for you. Now, when we talk about the L'Oreal, ये थोड़ा सा कम expensive है tier foundation से. Plus, इसमें shades choose करना ना मुझे लगता है कि it's much easier for us rather than choosing shades in tier. However, L'Oreal is very natural looking cushion foundation, but Tier is a full coverage cushion foundation. If you have acne marks, if you have more pigmentation, you can use a concealer and then use a Tier. But if you have
lesser problematic skin or lesser pigmented areas or lesser acne marks, then you can definitely use a concealer, then use this one. So for natural finish, you can opt for L'Oreal and it's more stable formula as well than TT. TT को मैंने full summers में test किया है and it performs brilliantly. So you can definitely opt for one of them as per what your skin needs and as per your budget. और अगर आप एक comparison देखना चाहते हो between these and other cushion foundations available in India, I'm tagging the video here and the description as well. You can go there and watch that video in detail. Now let's move ahead with the foundations. Now this video is like a compilation of the foundations that you can use. But अगर आप इन सारे foundations और skin tints के बारे में detail में जानना चाहते हो, I'm tagging a playlist down over here. इन सारे फाउंडेशंस के बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है मेरे YouTube चैनल पे. तो अगर आप इससे थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल देयर इंग्रेडिएंट्स, हाउ विल दे वर्क, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल अवेलेबल ऑन माय YouTube channel in this playlist. So find that playlist by the name of Foundations and Skin Tints in the description. First foundation in the foundation category, which has also been my favorite last year and it has performed brilliantly on many faces in India. So one of the favorites I have just told you, which I was supposed to tell you later, but this is Maybelline 30 Hour Superstay Foundation. This comes with sheer to medium coverage, although company says it is a full coverage one. I personally feel it stayed up to medium coverage only. It is a matte foundation. We all need matte foundations in summers, but it is not that matte so that you will start feeling uncomfortable. कभी कभी क्या होता है, our skin is not that matte, तो हम इतने matte foundations नहीं लगाना चाहते हैं. That's when you can use this foundation. I feel this foundation will work on all types of skin, dry, oily, combination. अगर आपकी ड्राई बहुत ज्यादा है समर्स में, you can use a moisturizer that is cream based. If you have oily skin, you can use a gel based moisturizer and then you can use this one. This one also oxidizes to one skin tone. Like I told you, summers में ऐसा कोई foundation नहीं है जो oxidize नहीं होगा. अगर आप foundation की chemistry समझना चाहते हो, let me know in the comments. I'll put a video on that. So सारे foundations oxidize होते हैं even though they are of your same skin tone. So you can opt for one shade lighter in this one. And it's like a skin tint, sheer to medium coverage है तो चल जाएगा अगर एक टोन लाइट भी होगा. It is amazing for your everyday use, amazing for your college, office, light party wear makeups as well. Beautiful. इसका ना मैंने full wear test भी किया हुआ है, so you can go check that video as well. Okay. Now let's move on to something which is full coverage और काफी affordable foundation है. Mars Zero Blend Foundation. इस foundation के अंदर ना shades की थोड़ी सी मुझे कमी लगती है. In fact इसके काफी reviews इस तरीके के ही हैं कि इसके अंदर shades की कमी है. This one comes with a pump. पंप हमारा Maybelline Superstay के अंदर भी था. Full coverage matte foundation. देखो जब मैं फुल कवरेज की बात कर रही हूँ तो आई फील यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. यू कैन टेक वेरी लिटिल ऑफ इट, मिक्स इट इन योर मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई इट लाइक अ स्किन टिंट. एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ फुल कवरेज और you have deeper pigmentation or acne marks, then you can use it as is as well. I really like the coverage of this one. I really like the finish of this one. You will still need पाउडरिंग विद दिस फाउंडेशन. एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप बहुत ड्राई कर लोगे फेस को तो बहुत ज्यादा ऑयल एकदम से फेस पे निकलने लग जाएगा, क्योंकि आवर स्किन टेंड्स टू बिहेव लाइक देयर इज सम इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड ऑन आवर फेस. सो अगर हम उसे बहुत ड्राई कर देते हैं विद टू मच पाउडरिंग, टू मच फाउंडेशन, और हमने पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर भी लगा दिया, ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर भी लगा दिया, सो मेक श्योर यू क्रिएट अ बैलेंस with the matte foundation. पाउडर थोड़ा यूज किया, जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है use more powder over there, and that's how we set our base with matte foundation. So I really like this one as per the affordability, the pump, the ease of availability, because it is now available in Swiggy, Blinkit, Zomato, everywhere. तो एक बारी के यूज के लिए, दो बारी के यूज के लिए अगर जल्दी से फाउंडेशन भूल गए हो, opt for this one. I like this one for those uses. Mars Oxidize होता है 1 to 1.5 टोन. के बाय कटरीना में भी हमारे पास सॉफ्ट मैट फाउंडेशन आता है. हालांकि मुझे
के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा पसंद है, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस फाउंडेशन. कम्स विद अ पंप, ग्लास बॉटल आती है. ऑक्सीडाइजेशन की बात करें, सो इट ऑक्सीडाइजेस टू 1 to 1.5 टोन. सो यू नीड टू powder it, you need to make sure that there is a layer between your skin and this foundation, which can be of, let me know in the comments what will be that layer. I'm sure अगर आपने नेहा देवगन के बिगिनर कोर्सेज लिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उस कोर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो लेयर क्या होगी. नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगी ना, क्विज ऑप्शन में भी डालूंगी. ओके इस कैटेगरी में ना मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशन है एंड आई कांट रियली डिसाइड कि विच वन इज बेटर देन विच, बिकॉज दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट पर्पसेस. तो अगर आप लॉरियल में फाउंडेशन देख रहे हो ना, लॉरियल की मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो. सो अगर आप लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन देख रहे हो जिसे आप पार्टी वेयर में अप्लाई कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है स्किन पे. कम्स विद SPF 25. देखो किसी का भी मैं SPF की यहाँ बात इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज यू स्टिल नीड योर SPF. तो इनका SPF कंसिडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है because they are just extra little layer of SPF. You still need your sunscreen on any of the foundations that I have mentioned over here. So 32 hour fresh wear foundation है. ये फाउंडेशन का मैंने फुल वेयर टेस्ट किया था, मुझे ये काफी अच्छा लगता है. इसकी कवरेज मीडियम टू फुल कवरेज है. मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट पार्टी फाउंडेशन है. सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस है. बात कर लेते हैं लॉरियल के सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन की. ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये एवरीडे फाउंडेशन है. सुपर ब्लेंडेबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इसमें आपने एक या दो शेड लाइट भी ले लिया ना अपनी स्किन से, तब भी इसके अंदर स्किन मैचिंग टेक्नोलॉजी है और ये आपकी स्किन से मैच कर जाएगा. देखो डार्क फाउंडेशन को आपकी स्किन से मैच कराना इज रियली टफ, बट लाइट फाउंडेशन को आपकी स्किन से मैच कराना इट्स इजी. वेरी लाइट कवरेज, समथिंग लाइक स्किन टिंट, बट सॉफ्ट है, ब्लरिंग है, शेयर है, एवरीडे यूज के लिए है और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. तो अगर आप मुझसे पूछो आज की अगर आप फाउंडेशन शुरू करना चाहते हो यूज करना, तो मैं आपको लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन बताऊंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन ना काफी ईज देता है. या आप अपनी मम्मी को दे सकते हो जिन्हें बहुत ज्यादा फाउंडेशन फीलिंग पसंद नहीं है, या आप अपने ऊपर लगा सकते हो जब आपको नो मेकअप लुक्स करनी है, या आप उन्हें बता सकते हो जिन्हें शेड चूज करने में मुश्किल होती है. सो दैट्स व्हाई L'Oreal True Match Super Blendable Foundation is one of my favorite foundation. Okay? मैंने ना लास्ट ईयर शी ग्लैम का पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी. उस टाइम मैंने शी ग्लैम के ये दोनों फाउंडेशन ट्राई किए थे. शी ग्लैम का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन. देखो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं मैट फाउंडेशन की, तो शी ग्लैम का जो ये मैट फाउंडेशन है ना, बजट में आता है और मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है. इट इज वन ऑफ दोज फाउंडेशन, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में मैट फाउंडेशन हमारे मिलते हैं ना, कोई भी फुल कवरेज फाउंडेशन जो मिलते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं. जैसे कि इसको अगर मैं बोलूं तो ये मार्स जीरो ब्लेंड जैसा फाउंडेशन है, बट मार्स इससे थोड़ा सा सस्ता है. तो दिस इज शी ग्लैम लॉन्ग लास्टिंग ब्रीदेबल मैट फाउंडेशन. इसकी कवरेज मुझे पसंद है. ऑक्सीडाइज ये भी होता है, ऑलमोस्ट लाइक 1 to 1.5 टोन्स ये आपका ऑक्सीडाइज होगा. मुझे ये अच्छा लगता है फॉर पार्टी मेकअप्स एंड फॉर फुल कवरेज लुक्स. सो इफ यू आस्क मी विच वन टू बाय आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज, I will say you can pick the Mars one because this one is little more expensive and I feel it does almost the same job. Okay, the next foundation of the video is Lakme 9 to 5 Hya Matte Foundation. This one has hyaluronic acid, as the name says, Hya Matte, and it gives you soft matte finish. I feel this is medium to almost full coverage foundation and has little bit of shine and radiance in it as well.
although it is matte but it is easily spreadable, easy to apply as well. इसके साथ ना मुझे एक चीज लगती है कि ये ऑक्सीडाइज थोड़ी जल्दी होता है, ऑक्सीडाइजेस इन within like 2 hours you will feel that it has oxidized on your skin, और मेरी स्किन पे तो ये और भी जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया था. So there is this one clause with this one. लैक्मे की अच्छी बात ये है कि ये हर ड्रग स्टोर पे अवेलेबल होता है, तो आप किसी भी शॉप पे जाके इसे अपने हाफ फेस पे स्वॉच लगा के देख सकते हो. अगर ये उतना ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है सो देन यू कैन बाय दिस. अदरवाइज ऑनलाइन बाय करना है तो इसका 1 या 1.5 शेड लाइट ही ऑर्डर करना. मेरे पास W230 है and I feel this is little dark for me. I'm MAC NC37 in shade, but definitely not one of my favorite foundations क्योंकि इसका जितना प्राइस पॉइंट है उतने में तो मैं Maybelline Super Stay खरीद लूंगी, and that I think will perform much better than this one. Now one of the foundation which is makeup artists favorite, जो medium range makeup artist आपके होते हैं, they love using this foundation because it's a matte foundation, medium to full coverage finish देता है. Charmisi Milano foundation, इसे मैंने last year मंगाया था and I applied it. I also loved the finish of this foundation. बहुत ही beautiful लगता है, easy to apply है, उतना thick नहीं है. One distinguishing feature that I feel this one has is it's not that thick as your full coverage foundations are. So that's what makes it feel there is not much sitting on your skin. That feeling is really important for me. Beautiful for your party makeup. This oxidizes to 1 to 1.5 tone again on my skin. Very beautiful foundation. You can definitely pick this one. Charmisi Milano का अगर मुझे experience याद है तो इसके शेड पिक करने में थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी. शेड्स जिस तरीके से ऑनलाइन दिख रहे थे उस तरीके से थे नहीं, सो इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम मुझे फील हुई थी. बट एक बारी मैं दोबारा वेबसाइट खोल के चेक कर लूंगी. इफ द प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम, आई एम गोना पुट अ नोट ऑन द स्क्रीन. ओके, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आई एम गोना पुट द नोट. Now when we are talking about the professional foundations or medium to full coverage foundations, I feel I should mention MAC Studio Fix over here as well because this one performs to professional level. Comes with a pump now and you know it doesn't feels very heavy on the skin. MAC Studio Fix की अच्छी बात यही है कि आपका फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएंगी, वो चार्मेसी में भी आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएंगी. बट डोंट बाय इट ऑनलाइन, यू हैव टू गो टू द स्टोर. मैक का फाउंडेशन खरीदने के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे उसे लेना चाहिए, देयर इज अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन माय चैनल. यू कैन गो टू दैट वीडियो. आई एम गोना लिंक इट ओवर हियर and will put in the description. Don't forget to watch that video because MAC foundation choose करना थोड़ा मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर शेड रेंज ही इतनी सारी है, 60 शेड्स में ये आएगा, तो आप कैसे जल्दी से चूज कर लोगे, राइट? एंड इफ यू डोंट वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन डेफिनेटली गो टू द स्टोर एंड देन ट्राई वन. डोंट बाय इट ऑन द सेम डे. 2 शेड लगा के देखो जो क्लोजेस्ट टू योर स्किन टोन है, 1 लाइट 1 सेम एग्जैक्टली मैचिंग टू योर स्किन टोन, एंड देन बाय इट द नेक्स्ट डे. एटलीस्ट कीप ऑन वेयरिंग दैट फॉर 3 to 4 hours. अब आप बोलोगे कि नहीं 3 से 4 घंटे हम कैसे लगा के रखेंगे, सो प्रोबेबली गो इन द इवनिंग, have some dinner in the mall, then go to the store, apply the foundation half and half probably, or just on the lower sides of your face, and just come back, keep on applying it, and then wash your face at the night and you're good to go. That's how you can plan your day and plan your shade. Earlier I used to feel that I had oily skin in my 20s. I used to feel that it used to oxidize, but now after the reformulation I feel the formula is very stable and you can definitely invest in MAC foundation. If you don't have one, I think your first professional foundation can be the MAC foundation. It is beautiful. Okay, now अब अगर प्रोफेशनल फाउंडेशन की बात कर रही हूँ ना, वन थिंग दैट हैज स्टेड इन वैनिटीज ऑफ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इज Fenty Beauty foundation. इसकी ना मेरे पास ये दोनों रेंज है. I have the hydrating one, I have the matte one as well. I feel the hydrating one has a soft matte finish. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशन नहीं चाहिए ना, तो आप इसका हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लगा सकते हो. फुल कवरेज फाउंडेशन आएगा, बहुत ब्यूटीफुल फिनिश है, photographs beautifully. This is your party makeup foundation. You can't really apply it on every day because it becomes too much, but fantastic foundation.
आई थिंक इफ यू वॉन्ट वन फाउंडेशन दैट इज फुल कवरेज, देखो मैक का जो फाउंडेशन था ना वो शेयर टू मीडियम कवरेज तक आके रुकता है, बट दिस विल गिव यू ब्यूटिफुल फुल कवरेज एंड लेज डाउन ब्यूटिफुली ऑन द फेस. नाउ इफ यू हैव super oily skin, you can opt for the matte one, and for the rest of the skin types, buy the hydrating one. I love this foundation. I fell in love with this foundation जब इंडिया में ना मैट फाउंडेशन की बड़ी कमी थी, इतने अच्छे मैट फाउंडेशन आ नहीं रहे थे, तब हर एक मेकअप आर्टिस्ट ने इस फाउंडेशन को यूज़ किया एंड इट फोटोग्राफ्स ब्यूटिफुली. यू जस्ट ट्राई इट वंस. आई रियली वांट यू टू ट्राई इट वंस. अगर आपको ऐसा लगता है कि आई वांट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, गो टू Sephora. I think it is available in Sephora or Tira. So go there, take the hands-on experience, ask them to apply it on you, and then see it for yourself. Shade range की तो कभी कोई कमी ही नहीं है Fenty Beauty में, so you can definitely buy this one. Okay, now मैंने जब आपसे कहा कि हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस और हाइड्रेटिंग स्किन टिंट्स भी आप यूज कर सकते हो समर्स में, सो इट्स नॉट अ लाई. वी और स्पेसिफिकली मी, I have used hydrating foundations on my clients, on myself as well. बट क्या होता है ना, हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस में बस इतना ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी पाउडरिंग ज़्यादा करनी है. अगर आप मैट फाउंडेशंस में पाउडरिंग थोड़ी कम कर रहे हो, हाइड्रेटिंग में थोड़ी ज़्यादा करोगे, परफॉर्म वो उतना ही अच्छा करेंगे आपकी स्किन पे. तो मैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इंक्लूड करना चाहती थी इस वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ मैट 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 हो रही थी. मुझे लगता है कि मैं आज भी आई विल पिक Too Faced over Charmese Milano. I will pick Too Faced over K Beauty Soft Matte. So Too Faced is something जिसे मैंने हर मौसम में टेस्ट किया है, and I completely love this foundation because of the spreadability, the way it sets on my skin. Sheer to medium coverage formula है, इसे मैं पाउडर करके सेट कर सकती हूँ. It doesn't look too much. So Too Faced आपका एक फाउंडेशन है जब आप अपने हर मौसम के साथ फाउंडेशन बदलना नहीं चाहते. सो दिस इज योर दैट फाउंडेशन. दिस इज योर ऑल वेदर फाउंडेशन, ऑल स्किन टाइप्स फाउंडेशन, एवरीथिंग. सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू बाय दिस फाउंडेशन. अगर इस पूरी वीडियो में आप एक फाउंडेशन खरीदना चाहते हो, एंड आई डोंट वॉन्ट टू साउंड टू सेल्सी, आई वॉन्ट टू टैग दीज प्रोडक्ट्स फॉर यू ताकि आपको ईज रहे. तो अगर आप एक फाउंडेशन खरीदना चाहते हो ना, इट विल ऑलवेज बी बॉर्न दिस वे. और आई लव दिस फाउंडेशन सो मच. मेरे पास आना, आस्क मी, DM मी, कॉमेंट मी कि इस फाउंडेशन को यूज कैसे करना है. आई विल टेल यू. वैसे मैंने मेरे टॉप फेवरेट फाउंडेशंस की वीडियो भी बनाई हुई है, तो वहां भी आप जाके देख सकते हो. बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, दिस हैज नो प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्स, फाइंडिंग दिस वन, एनीथिंग. ब्यूटी. Love it. Okay, I bought this Hydro Grip Milk Skin Tint. ये एक स्किन टिंट है, बट ये हाइड्रेटिंग है, इसलिए मैंने इसे एंड के लिए रखा था. तो अगर आप हाइड्रेटिंग स्किन टिंट चाहते हो, बट इसे आपको पाउडर करना पड़ेगा क्योंकि सैटिनी फिनिश है इसकी. तो अगर आप हाइड्रेटिंग स्किन टिंट फिर भी चाहते हो यूज़ करना, इफ़ यू आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया एंड यू स्टिल वांट समथिंग हाइड्रेटिंग बट इट्स समर ओवर देयर, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द मिल्क हाइड्रो ग्रिप स्किन टिंट. क्यों? क्योंकि जब भी हम समर्स में मेकअप लगाते हैं, वी ट्राई टू यूज़ gel primers, gripping primers. Why? Because the foundation should not move from our skin. Okay, so this has already those sorts of properties, plus it's hydrating as well. So this one is not gonna move, still give you hydration, and will still keep on performing. So powder it and use it if you want. देखो, this is not my first choice in this video, but I still wanted to mention this one. Okay, so you can consider it if you're staying outside India, or if you want to buy in your winters. Now, अगर हम समर मेकअप्स की बात कर रहे हैं और अगर हम कॉम्पैक्ट्स की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? माई फर्स्ट चॉइस इज मैक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन. मैक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन को यूज करने के देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, उतने कि जितने आपने सोचा भी नहीं होगा. क्योंकि मैं भी आज तक डिस्कवर करती हूँ, जब मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट की वीडियोस देखती हूँ, आई स्टिल फील ओह, मैक कॉम्पैक्ट को ऐसे भी यूज कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द वेज इज you take it on a spatula and you just scrape it and just mix a little bit of Fix Plus in it, apply it before applying your foundation.
and you will see it will give you a matte finish and your makeup will perform beautifully. So ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मैक कॉम्पैक्ट को यूज करने के. ये आपके स्किन टिंट के ऊपर भी काम आएगा. मैक कॉम्पैक्ट यूज टू गिव यू अ लॉट ऑफ कवरेज बिफोर, बट आफ्टर द रीफॉर्मुलेशन इट एक्चुअली वर्क्स लाइक almost like Charlotte Tilbury compact or little more coverage than that, but it's beautiful. इसके shades choose करना मुश्किल है, so go to the store and then buy your shade. ये तुक्के मत लगाना कि मेरा MAC में NC this shade है so इसका same होगा, because shade range is entirely different. It's not the same anymore. So try and go to the store and then buy it. And an affordable alternative, I wouldn't say, but an affordable compact that I have over here is Maybelline Superstay Compact. इसको मैंने लोगों को अप्लाई करते हुए देखा है और मैंने इसे ना बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया. मैंने बस इसे टच करके देखा था और मैंने इसकी फॉर्मुलेशन जानने की कोशिश करी थी. तो ये पतला कॉम्पैक्ट है, ब्यूटीफुल है, मेकअप सेट करने के काम आएगा, बट उससे ज़्यादा मैंने इसे बहुत वियर टेस्ट करके नहीं देखा है. ठीक है, तो अगर आप एक अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट ढूंढना चाह रहे हो ना, मैंने मेबेलिन का दूसरा कॉम्पैक्ट भी ट्राई करके देखा है. मुझे लगता है कि अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट राइट नाउ इंडिया में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपका मेकअप भी सेट कर देगा अगर आप लाइटली पाउडर करना चाहते हो. इसके अंदर कवरेज भी है, जितना मुझे इसको टच करके अप्लाई करके पता चला है. बेसिकली अगर हम एक कॉम्पैक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखें कि वो स्टे करता है, वो हमारा मेकअप सेट करता है, वो थोड़ी सी हमें कवरेज भी देता है, वो सब प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है. सो यू कैन ऑप्ट दिस वन इफ़ यू डोंट वांट टू ऑप्ट द मैक वन और द शार्लेट टिल्बरी वन. Charlotte Tilbury is beautiful, amazing for setting the base, but if you want coverage then these two gives you coverage as well. इसलिए मैंने Charlotte Tilbury का नाम नहीं लिया क्योंकि it doesn't act like a foundation, it more acts like a setting powder only. Okay, so now that we got to know about all of these foundations, these are the three things that you need to keep in mind. First, you always have to powder your base even though it is matte. You will never forget powdering it under the eyes and on your T-zone. If possibly, lightly dust the powder on other areas of the face as well. You don't want a lot of shiny look, and sweat also moves the base. So try to powder your base. Second, hydrating foundation आपके लिए बुरा नहीं होता. It's just that you need to powder it more. Third, जितना थिन आपका फाउंडेशन होगा या स्किन टिंट होगा उतना अच्छे से वो परफॉर्म करेगा, उतना अच्छे से आपकी स्किन पे वो बैठेगा. तो क्या करें, फुल कवरेज फाउंडेशन यूज ना करें. We can use it, but then you will have to powder it more to make it stay on your skin, and you have to use gripping primer or probably oil controlling primer depending upon your face type. ज़्यादा ऑयल आता है तो oil controlling primer पहले यूज़ करो, silicone based primer यूज़ करो and then apply the foundation. and अगर foundation stay नहीं करता है तो use the gripping primer. अगर दोनों प्रॉब्लम है तो टी जोन पे जहाँ ज़्यादा ऑयल आता है वहाँ पे सिलिकन प्राइमर यूज़ करो एंड रेस्ट ऑफ द फेस पे अप्लाई अ ग्रिपिंग प्राइमर. ओके, और यू कैन स्किप द ग्रिपिंग प्राइमर अगर इतना खर्चा नहीं करना चाहते हो, बट डोंट अप्लाई टू मच ऑफ क्रीम मॉइस्चराइजर. डोंट स्किप इट एज वेल. ओके, अब बारी आती है मेरे फेवरेट्स की. सो अगर मुझसे आप पूछोगे कि एक फाउंडेशन जो एवरीडे में यूज करना चाहिए और चलेगा भी और बहुत ज्यादा केकी नहीं लगेगा और नेचुरल लगेगा, इट विल बी मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन. अगर आप मुझसे पूछते हो कि आप बिगिनर हो और आपको एक फाउंडेशन खरीदना है, स्किन टेंट सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन खरीदना है जो कि बहुत ज़्यादा ना लगे एंड ईजिली परफॉर्म करे, इट विल बी लॉरियल ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन. अगर आप चाहते हो कि एक फाउंडेशन जिसमें फुल कवरेज हो और वो अच्छे से परफॉर्म करे, इट विल बी फेंटी ब्यूटी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप. और अगर आप चाहते हो एक फाउंडेशन जो कि आपके सारे वेदर्स में परफॉर्म करे, इट विल बी बॉर्न दिस वे टू फेस्ड फाउंडेशन. नेक्स्ट, अगर आप एक स्किन टिंट चाहते हो जो कि इजीली अप्लाई कर सको एंड ऑन द गो रहे, देन इट विल बी लॉरियल 24 आवर टिंटेड सीरम फाउंडेशन. इट हैज़ अल्कोहल. अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है सो यू कैन स्किप दिस वन एंड गो टू द मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन. लग्जरी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो फेंटी ब्यूटी की ईज ड्रॉप्स सीरम स्किन टिंट इज अमेजिंग.
दिस वॉज द समर बेस्ड गाइड फॉर यू. अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, थोड़ा और जानना है, उस प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी. नेहा ने आपके लिए सारे वियर टेस्ट किए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है. बट अगर आपके लिए गाइडलाइन ईजी थी, समझना ईजी था, फिर भी कुछ एक दो चीजें आप पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट करो एंड आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि नाउ वी हैव completed 5,000 subscribers and I'm super happy and I will be announcing a giveaway super soon on my birthday. Okay, so thank you for watching this video and I shall see you in next one. और जानते हो समर फाउंडेशंस की सब बात करते हैं तो एस्टी लॉडर की बात करते हैं, और मैंने एस्टी लॉडर आज क्यों नहीं ऐड किया, ये रीजन आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, I shall see you in next one. On this note, this is Neha Devgan saying bye bye.